Listen, student. I am Dr. Arvind Kumar, Assistant Guest Faculty Professor in Jamui Government Engineering College. Here, now I am going to deal about the value chain. This is the class of cost management of engineering project and topics is value chain. What is mean by value chain? You often heard the name value additions, supply chain. Here I am going to clear about the value chain. What is mean by value chain? An organization is a collection of activities that convert input resources such as material, labor, and machine time into product or services. A value chain is a set of logically sequenced value adding activities that convert input resource into product or services in a manner consistent with chosen business strategy. किसी भी व्यवसाय में उत्पादन की प्रक्रिया के तहत जो भी इनपुट होते हैं, चाहे वो जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, whatever be the inputs, all are logically converted for the enhancement of value of the input. जैसे कि लौह अयस्क को प्रोसेस किया जाता है लोहा बनाने में, तो लौह अयस्क जो है वो इनपुट है, आयरन ओर जो है वो इनपुट है। अब एक प्रक्रिया के तहत जो है लोहा बनाए जाते हैं, कई प्रकार के लोहे बनाए जाते हैं, और प्रक्रिया के अंत में जो लोहा जो उत्पादित होता है, निश्चित ही उसका जो है मूल्यकरण जो है प्रक्रिया के तहत होता है, उसमें वैल्यू एडिशंस होता है। जितने कीमत आयरन ओर के थे, अब वही जो है जो लोहा है
विभिन्न प्रकार का जो एक प्रक्रिया के तहत निर्मित हुआ है, अब उसका वही कीमत नहीं रह गया, उसमें मूल्य परिवर्धन हुआ है, वैल्यू एडिशंस हुआ है एक प्रक्रिया के तहत। और ये प्रक्रिया जो है वो एक लॉजिकल मैनर में हुआ है, इलॉजिकली नहीं हुआ है। उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें ट्रेड कॉमर्स का एक ज्ञान है, क्या समाज के अंदर डिमांड है, इस लोहे से क्या कुछ समाज को जो है सर्विसेज दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है वो लॉजिकली जो है वो निर्माण प्रक्रिया में जो है वो अंतर्निहित है। तो इज इट क्लियर द वैल्यू चेन? And sometime student confused about the chain. What is the chain? The value is right, but what chain? In the process of value additions, there is sequential activities one by one, which logically add the value in the product. एक क्रमबद्ध जो है प्रक्रिया जो के अंतर्गत बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं, कार्य होते हैं, जिसके कारण जो है वैल्यू एडिशंस होता है। ऐसे नहीं होता, वन बाय वन। जैसे आयरन ओर है, उसमें पहले छटाई का काम होता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको जो है विभिन्न तरीकों से जो है अलग किए जाते हैं, वॉश किए जाते हैं, फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स जो है होते हैं, फिर जो है सो उनको गर्म किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। उसमें अन्य चीज़ें जो होती है, कार्बन वगैरह जो है, जिस तरह का लोहा का निर्माण करना है उसी हिसाब से उसमें अन्य चीज़ों को भी उसमें मिलाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्रक्रिया के दरमियान जो है एक श्रृंखलाबद्ध जो है उपक्रियाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं, जिसके अंतर्गत जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोसेस्ड होता है लॉजिकल मैनर में। तो वही जो चेन जो है उसको वैल्यू चेन कहा जाता है। The chain under the processions of any product which add value to the product is called chain. An overall activity in the process is so-called value chain. Is it clear? Now, building a value chain. Building a proper value chain, configuring the value chain is a crucial step
in successfully implementing business strategy. Activity that adds value under one business strategy can diminish value under another strategy. Firm develop a sustainable competitive edge by carefully identifying strategy relevant activities and performing them in a manner that differentiates them from other rivals. In building a value chain under a particular strategy, one thing here noted that a separate business strategy has separate value chain. One activity, if it is important in any strategy, it may be possible it is not important in the other strategy. It depends upon what is the business strategy of the firm in the course of value additions. In the course of value additions, any firm ascertain the right type of activities which leads to its objective in the value additions of the product or in the course of product differentiations which make him different from its rivals. In a particular business strategy, a particular sequence of activities are included in the value addition of the product, and by which a product becomes different from others on the front of value. So, in the building of value chain, the product differentiations are very important. Value additions for the what? For the competence in the market, in competitive market, and obviously the product differentiation is the essence of any business to compete in the competitive market. That's why, according to the business strategies, any firm or organizations to do and collect the activities which is conformal to its objective
on the front of product differentiations and on the front of cost leadership. So it is clear how a firm or organizations builds a value chain in concise. There is business strategy under which a product differentiation is certain, and under the cost leadership the cost is certain, and on the basis of two the activities are certain which activity should be go on, which should be not, and on the basis of that, in a particular business strategies, one firm can produce its product which is very competitive in the market on the front of product differentiations and cost leadership. Now, extending the value chain beyond the firms. We can classify an organization's activities into 5 generic categories based on the logical sequence in which these activities take place in organizations. The value chain of primary activity for manufacturing that is. First, inbound logistics. Second, production operations. Third, outbound logistics. Fourth, marketing and sales. After sales, activities fifth. Now I am going to deal one by one what is meant by that. Extending the value chain beyond the firms. It may be possible on the front of product differentiations. It may possible any firm is not capable to do that by own. Due to technological inefficiency, financial inefficiency, human resource inefficiencies, and there are so many inefficiencies which are responsible that any firms are not capable to do by own what is needed in the front of cost differentiations and cost leadership. ये हो सकता है कि कोई भी फर्म जो आवश्यकता महसूस कर रही है कि जिस तरह का हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, जो उसका कॉस्ट होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए हमारे अंदर जो तकनीकी सामर्थ्य
मानव संसाधन का सामर्थ्य या अन्य जो बातें जो हैं वो कैपेसिटी जो है हमारे फर्म के अंतर्गत नहीं है। वो महसूस करता है कि वो इटसेल्फ इसको जो है नहीं पूरा कर सकता है। एक समय है, उस समय के अंतर्गत वो नहीं पूरा कर सकता है। जबकि मार्केट के डिमांड के अनुसार वो बहुत लाजिमी है, बहुत ज़रूरी है। उसको ओवरलुक करने का मतलब है व्यवसाय में जो है बहुत बड़ी अवसर को खो देना। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी फर्म आउटसोर्सिंग करती है जो प्रोफेशनल्स फर्म होते हैं उनसे संपर्क करती है विभिन्न कामों के लिए, इधर मार्केटिंग हो गया या एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स हो गया या ऑन द फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। वो आउटसोर्सिंग की तरफ जो है ध्यान आकर्षित करती है और ये देखती है कि इसका लाभ लेने की स्थिति में जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। हम खुद से जो है उस तरह का प्लांट तो नहीं लगा सकते हैं, खुद से जो है उतना जो है खर्च जो है हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको देखा जाए कि शायद आउटसोर्स से ये संभव हो और विभिन्न क्षेत्रों के जो पेशेवर होते हैं उनसे वो संपर्क करती है। वैसी स्थिति में एक रास्ता, एक विकल्प जो है वो दिखाई पड़ जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस और कॉस्ट लीडरशिप के मुद्दे पर जो है वो आउटसोर्सिंग से जो है वो कहीं जो है वो अपनी स्थिति को बाजार में बेहतर बना सकती है। And that is so called extending the value chain beyond the firm। अपने से बाहर भी तलाश करना कि हमारे प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल by outsourcing, by taking help from other professionals firm। And in the course of that, the value chain of the primary activity for the manufacturing, that is first inbound logistics. Inbound logistics, purchasing, receiving, inspections, inventory control of input materials. These things are outsourced for the value additions. This is so-called inbound logistics.
परचेजिंग, रिसीविंग, इंस्पेक्शन, इन्वेंट्री, कंट्रोल ऑफ इनपुट मटेरियल्स। जो इनपुट मटेरियल्स है उसके खरीद, उसकी प्राप्ति, उसका निरीक्षण, उसका भंडारण के मुद्दे पर जो है कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई संगठन जो है वो बाहरी प्रोफेशनल्स का सहारा लेकर उसमें वो एक क्वालिटी ला सकता है। वो क्वालिटी जो है वो आफ्टर ऑल जो है वो वैल्यू चेन जो कहा जाएगा है, वो उसमें समाहित हो जाता है। कहीं भी हम जो है कोई भी ऐसा गुणवत्तापूर्ण काम कर रहे हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो वो सब वैल्यू चेन है। अब हमारे पास जो है भंडारण की क्षमता नहीं है, हम उतना भंडारण नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उतना जगह नहीं है, तो जो बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि यही काम करते हैं, भंडारण का काम ही करते हैं, आउटसोर्स करेंगे हम। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो है सो उसके लिए लंबा चौड़ा गोदाम बनाएं, लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन करें, उसमें समय भी लगेगा और उसमें जो है बहुत सारे पैसे भी हमारे जो है वो चले जाएंगे, जो कि हम हमारे लिए जो हमारा कोर वर्क जो है प्रोडक्शंस उसके लिए ज़रूरी है। इन सब कामों को जो है हम आउटसोर्स करेंगे, बाहर इसके लिए जो है हम झांकेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर इसका स्कोप तलाश करेंगे। आप देख सकते हैं आज के समय में जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपना भंडारण का काम आउटसोर्स कर रही है। जो लोग भंडारण के काम में पेशेवर हैं वो भंडारण का काम करते हैं, उनमें जिनका काम गुणवत्तापूर्ण है उनको हम हायर करेंगे। तो जिनका भंडारण का काम गुणवत्तापूर्ण है, गुणवत्तापूर्ण जब भंडारण होगा तो उस गुणवत्ता का लाभ जो है प्रोडक्ट को तो कहीं ना कहीं से मिलेगा ही। यही तो वैल्यू चेन है। खरीद, परचेजिंग, हम इनपुट्स जो है उसका खरीद कहाँ से करें? दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं इनपुट्स जो हैं उसके दाम ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं कम हो सकते हैं, कहीं उसको कोई पूछ भी नहीं रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इंफॉर्मेशंस नहीं है। लेकिन एक जो प्रोफेशनल जो फर्म है जो कि यही कार्य करती है, लोगों को इनपुट मुहैया कराती है उचित कीमत पर, वो प्रोफेशनल है, वो इसी की जानकारी लेता रहता है कि ये रॉ मटेरियल जो है किस देश से जो है सस्ता मिलेगा, चाइना से मिलेगा, बांग्लादेश से मिलेगा, पाकिस्तान से मिलेगा या किसी अन्य देश से मिलेगा। वो यही काम ही करती है। तो उससे संपर्क साधा जा सकता है, भाई क्या इसका कीमत हो सकता है, क्या रेट्स के हो सकते हैं।
हमारा काम यहाँ आसान होगा। बहुत ज़्यादा इसमें हमें रिसोर्स खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोफेशनल्स जो फर्म हैं जो ये काम कराते हैं उनसे संपर्क करेंगे और उनके जो है पेशेवर जो है जो अनुभव है उसका लाभ जो है हम लेंगे। उसके बाद है रिसीविंग। ऐसा नहीं है कि इनपुट्स जो है जो आपको मुहैया कराए गए तो वो तुरंत गिव एंड टेक हो जाता है। जैसे हम कोई चीज़ छोटी सी चीज़ आपको दे देते हैं आप ले लेते हैं, उस तरह से नहीं होता है। उसके पीछे एक बहुत ही मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा काम होता है। जहाज से भी माल मंगवाए जाते हैं, ट्रकों से माल मंगवाए जाते हैं, हवाई जहाज से भी माल मंगवाए जाते हैं। माल का डिलीवरी जो होता है उसका इंस्पेक्शंस भी किया जाना पड़ता है कि भाई जो माल जो हमको मुहैया कराए जा रहे हैं वो सही में जिसके लिए हमने इनवॉइस भेजा था उसकी गुणवत्ता के अनुरूप है कि नहीं है। फिर अगर बाहर से माल आ रहे हैं देश के बाहर से तो वो उसमें जो है बहुत सारे जो टैक्सेशंस के जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरी करनी पड़ती है। उसके लिए भी प्रोफेशनल्स हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, उनसे संपर्क करना पड़ता है। उसके बाद फ्लाइट है, शिपमेंट है, उसकी व्यवस्था होती है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। किसका फ्लाइट शिपमेंट जो है वो बेहतर गुणवत्ता वाला है उसको देखा जाना पड़ता है। तो यहाँ भी जो है प्रोडक्ट के गुणवत्ता में सुधार किए जाते हैं एक बेहतर आउटसोर्सिंग से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है जो टेक्नोलॉजी है उसी से ही सिर्फ जो है सो प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार होते हैं, नहीं। परचेजिंग है, क्वालिटी फुल इनपुट्स, उसको रिसीव करना सही मात्रा में जो है और सही क्वालिटी का जो इनपुट से हमको मिला कि नहीं मिला इसको देखा जाना पड़ता है। इंस्पेक्शन है, उसको सही ढंग से जो है निरीक्षण करना पड़ता है। उसका भंडारण है, इन्वेंट्री कंट्रोल, उसको सही ढंग से भंडारित किया जाना पड़ता है जहाँ की उस इनपुट्स की उस रॉ मटेरियल की गुणवत्ता जो है वो उसमें कमी नहीं आए। और इन सब कामों के लिए पेशेवर जो है फर्म है जो कि यही काम करते हैं, उनका जो है मदद लेना पड़ता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। और इन सब में जो है प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुधारने का जो है जो कैपेसिटी जो है वो छिपा हुआ है सब में, परचेजिंग में, रिसीविंग में, इंस्पेक्शंस में, इन्वेंट्री कंट्रोल में,
जो इनपुट मटेरियल्स है उसकी गुणवत्ता में सुधार जो है इन सब से किया जा सकता है। अच्छी खरीद निश्चित है अच्छी गुणवत्ता को जन्म देगी। सही डिलीवरी, सही अमाउंट में डिलीवरी, सही टाइम पर डिलीवरी, ये भी गुणवत्ता को जन्म देने वाली है। उसका निरीक्षण, उसको हम इंस्पेक्ट कर देंगे, सही आदमी जो जानकार आदमी है उसका इंस्पेक्शंस करेगा, तो ये भी चीज़ जो है प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली है। अच्छा भंडारण, ये भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली है। रॉ मटेरियल्स का जो हम भंडारण करते हैं कि उसका क्वालिटी में जो है डिटोरिएशन जो है नहीं हो, अगर अच्छा भंडारण है तो ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाएगी। तो ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है जिसके अंतर्गत परचेजिंग, रिसीविंग, इंस्पेक्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ इनपुट्स मटेरियल्स आते हैं, इससे जो है वैल्यू एडिशंस जो है वो संभव है। एक वैल्यू चेन के अंतर्गत ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर जो है जिसके अंतर्गत परचेजिंग, रिसीविंग, इंस्पेक्शंस, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ इनपुट मटेरियल्स हैं, इससे जो है वैल्यू एडिशंस जो है संभव है। अब दूसरा हम लेते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशंस। प्रोडक्शंस शेड्यूलिंग, सेटअप, मशीनिंग, डायरेक्ट लेबर, operations, assembly. These things are under productions operations. What is that? Production scheduling, setup, machining, direct labor operations, assembly. उत्पादन का जो एक तौर तरीका है, एक समय है, उसका एक शेड्यूल्स जो है, उसके अंतर्गत बहुत सारे जो है कायदे हो सकते हैं, कानून हो सकते हैं। इंटरनल जो कायदा कानून किसी ऑर्गेनाइजेशंस का हो सकता है वो होते हैं। मशीनिंग जो है, बेहतर से बेहतर मशीन। डायरेक्ट लेबर ऑपरेशंस, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कैसे हैं, प्रशिक्षित हैं, अप्रशिक्षित हैं, कि गुणवत्ता वाले हैं, कुशल हैं, ये भी जो है बहुत वैल्यू एडिशंस में जो है प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन में सहायक है। एंड असेंबली, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स जो है विभिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स में बन सकते हैं और अंततः उसकी असेंबली होती है। अब ये असेंबली कैसी है, किस तरह से उसको असेंबल किया जा रहा है, ये भी जो है गुणवत्ता को जन्म देने वाली है। वैल्यू चेन में वैल्यू एडिशन का काम असेंबली भी करने वाली है। अगर बेहतर असेंबली होगा तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता बेहतर होगी। आजकल तो असेंबलिंग का ही जमाना है। जितने भी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, तो उसके मशीन कहाँ बन रहे हैं, गियर कहाँ बन रहे हैं, क्लचेज कहाँ बन रहे हैं, और फिर एक जगह उसको असेंबल किया जाता है। असेंबल करके उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो बेहतर कल पुर्जे या कंपोनेंट्स होने के बावजूद भी अगर असेंबलिंग सही नहीं है तो
उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता में जो है वो हड़ास आ जाएगा। हम बहुत ही गुणवत्तापूर्ण कंपोनेंट्स का निर्माण करवाते हैं, लेकिन उसकी असेंबलिंग जो है हम सही ढंग से नहीं करवाते हैं। असेंबलिंग के बाद उसकी टेस्टिंग नहीं करते हैं। निश्चित है कि जो है वो प्रोडक्ट जो है वो गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरेगी। टेल्को टेल्को को देखिए, एक ट्रक का चेसिस का जब निर्माण होता है, उसका असेंबलिंग होता है, उसके बाद जो है उसको विभिन्न तरीके से जो है टेस्ट किया जाता है चलाकर, कि वो ऊंचाई पर सही ढंग से चढ़ पा रहा है कि नहीं। ऊंचाई से नीचे उतरने के दरमियान जो है वो क्लचेज जो है उसको सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, ब्रेक सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, सही ढंग से वो स्पीड पकड़ रहा है कि नहीं। इतने टेस्टिंग के बाद तब जो है वो ट्रक जो है बेचने के लिए बाजार में भेजे जाते हैं। उसके बाद भी आफ्टर सेल सर्विस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये असेंबली जो है कितना महत्वपूर्ण है। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, जिसके अंतर्गत किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक शेड्यूल है, काम करने का एक समय है, तौर तरीका है, वो भी जो है गुणवत्ता को, कार्य गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। और जब ह्यूमन रिसोर्स के कार्य गुणवत्ता को जब ये प्रभावित करते हैं तो निश्चित ही प्रोडक्ट की भी जो है उसको गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे। मशीन वो भी जो है प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जो है प्रभावित करते हैं। पुरानी मशीनें हैं, पुराने ढंग के प्रोडक्शंस होंगे, उसमें नवीकरण नहीं होगा, फिनिशिंग सही नहीं होंगे। अत्याधुनिक जो मशीनें आ रही हैं उसमें फिनिशिंग बेहतर है, उसमें वेस्टेज कम है, ये सब बातें हैं। पावर कम खर्च होते हैं, जिसके कारण कॉस्ट इफिशिएंट जो है सो बनाता है जो है प्रोडक्ट को। तो मशीन ये वैल्यू एडिशंस में बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट लेबर ऑपरेशंस, अब जो लेबर हैं वो किस तरह के जो है लेबर हैं, कुशल हैं, अर्धकुशल हैं कि जो है अकुशल हैं, ये भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले हैं। जो अकुशल जो श्रमिक होंगे उनसे आप जो अगर गुणवत्ता, कार्य में गुणवत्ता चाहिएगा तो संभव नहीं है, उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टारगेट है उसको पूरा करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स आपके कंपनी के अंतर्गत हैं उनसे जो कार्य अपेक्षित है उसके लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है आपके ऑब्जेक्टिव का लिटरेचर पढ़ करके वो जो है तैयार नहीं हो जाएगा। उनको प्रैक्टिकली ट्रेंड करना पड़ेगा, जिसमें पैसे लगेंगे, समय लगेंगे। वैसे गुणवत्ता में सुधार नहीं आ जाती है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अनअसेंबलिंग, जिसके बारे में पूर्व में ही मैंने कहा कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो अंत में जो ये कार्य जो होता है, विभिन्न कंपोनेंट्स को बनाने के बाद जो उसका असेंबलिंग होता है, उसका फिटनेस जो होता है,
वो पूरा एक कंप्लीट प्रोडक्ट का रूप जो लेता है, उसका जांच वगैरह जो है वो बहुत अहम है, जो कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जन्म देती है। नाउ द थर्ड वन, द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। Warehousing of finished goods, packing, shipping, installation at customer site, ये सब इसके अंतर्गत है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर। ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी कंपनी के प्रेमिसियस से जो है वो जो फिनिश्ड गुड्स जो हुए वो बनने के बाद जो है वो बाहर निकले, तो उनका वेयर हाउसिंग, उनका उसका भंडारण होगा कहीं। वो भंडारण गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अगर वैल्यू एडिशन करना है अपने प्रोडक्ट में, तो वेयर हाउसिंग भी उसी तरह से गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा भंडारण हो कि वहाँ जो है जो फिनिश गुड्स है उसके जो है गुणवत्ता में जो है सो कमी आ जाए। इस क्रम में जो है जो गुड्स है उसका पैकिंग, किस तरह से उसका पैकिंग किया गया है, उसमें मॉइस्चराइजर्स जो है तो नहीं मतलब कि जा रहे हैं, या थोड़े से उठा पटक से वो टूटने वाली चीज तो नहीं है। ये सारे चीजों को जो है ध्यान में रख करके जो पैकिंग होता है फिनिश गुड्स का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये पैकिंग में अगर कोई कमी रह गई आपकी, तो आपके प्रोडक्ट के गुणवत्ता में भी कमी रह जाएगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, वेस्टेज जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये पैकिंग जो है जो कितना महत्वपूर्ण है वैल्यू एडिशंस में। शिपिंग, जहाज से प्रोडक्ट को आप भेज रहे हैं, कितने दिन में प्रोडक्ट जो है वो आपको जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, उसकी कैसे डिलीवरी होती है, और उस शिप पर जो है वो प्रोडक्ट के रख रखाव के लिए क्या व्यवस्था है कि आपका जो फिनिश गुड्स है उसके गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं हो। ये सारे चीजें जो है वैल्यू एडिशन में सहायक है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बेहतर चीज बनाने के बावजूद भी बेहतर चीज ग्राहकों को नहीं मिल पाएगा। आपने तो बेहतर बनाया लेकिन ग्राहक को बेहतर नहीं मिल पाया, उसकी क्वालिटी डिटेरिएट की हुई मिलेगी। जैसे आपने कोई किताब जो है बहुत अच्छा छापा, बहुत अच्छा प्रिंट किया, बहुत अच्छा कागज है, उसकी भंडारण ही आपने ऐसे जगह कर दी कि जहां पर कि जो है सो ये सीलन भरा का मड़ा है। आपके सारे किताबों में सीलन का जो है सो हो जाएगा एक प्रभाव। कहीं दीमक लगा रहेगा, कहीं उसका कलर जो है सो डिटोरिएट किया रहेगा, कहीं दाग लगा रहेगा। आपने तो चीज बनाई सही, लेकिन जो फाइनल जो कंज्यूमर्स है उसको क्या मतलब कि जो है मिल रहा है, ये तो यही ना महत्वपूर्ण है। उसको तो डिटोरिएटेड फिनिश गुड्स मिल रहा है। ये सब चीजें जो हैं, वेयर हाउसिंग ऑफ द फिनिश गुड्स, पैकिंग, शिपिंग, इंस्टॉलेशन एट कस्टमर साइट। जो कस्टमर है
बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं कि कस्टमर के यहाँ जो है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मशीनरी है, फैक्ट्री में जो बड़े बड़े मशीन लगते हैं, तो उसमें जो पेशेवर जो कंपनियां हैं वो फैक्ट्री में उस मशीन को इंस्टॉल करती है, वहाँ लगाती है, उसको परीक्षण करके उसको हैंडओवर करती है। ये सारा काम जो है वो पेशेवर कंपनी का ही होता है। तो आप किस तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं कस्टमर के साइट पर, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई पेशेवर कंपनी जो है मशीनरी बनाती है, किसी फैक्ट्री में कोई मशीन जो है इंस्टॉल करती है, और 5 ही महीने में जो है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, उसमें जो है सो शॉर्ट सर्किट आ जाती है, आग पकड़ लेता है, या उसका पेवमेंट है वही हिल जाता है, तो ठीक है भाई, आफ्टर सेल्स सर्विस तो है ही, लेकिन उस कंपनी को उतने दिन तक जो है अपना काम तो ठप रखना पड़ेगा। वो घाटा होगा उसको कि नहीं होगा, उसका असंतोष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इंस्टॉलेशन ऑफ कस्टमर्स ऑन द कस्टमर साइट ऑफ मशीनरी is very important for professionals। ऐसा नहीं है कि हम तो अपना माल बेच ही दिए हैं, अब किसी तरह से जो है इसको लगा दो, काम खत्म करो, एक बार लग गया, उसके बाद मेरा क्या है, पैसे तो मेरे मेरे आ ही जाएंगे। नहीं, आपके इंस्टॉलेशन में अगर शिकायत आएगी तो आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, भले ही आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो। अगर उसका स्थापन कार्य अगर सही नहीं है, जो कि पेशेवर कंपनी के द्वारा दिया हुआ है, जिसने मशीन सप्लाई किया है, तो ये जो है प्रोडक्ट की गुणवत्ता होने के बावजूद भी, जो सप्लाई करने वाली जो मशीनरी जो कंपनी है उसकी गुणवत्ता सही रहने के बावजूद भी अगर इंस्टॉलेशन सही नहीं हुआ है मशीनरी का, तो वो बिन गुणवत्ता वाली जो है वो प्रोडक्ट नहीं कही जाएगी। इसलिए कि उस मशीनरी के साथ इंस्टॉलेशन भी उसका जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये सब बातें जो हैं, ये किसी प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशंस में जो है बहुत सहायक है। एक एक जगह पर जो है वो वैल्यू एडिशंस जो है किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में किसी चीज़ में जो वैल्यू एडिशंस हो जाता है, हर एक जगह पर जो है वो वैल्यू एडिशंस का काम होता है। हर काम जो है गुणवत्तापूर्ण करने पड़ते हैं, इफिशिएंट तरीके से करने पड़ते हैं, तब जाकर करके ओवरऑल वैल्यू एडिशंस का काम हो पाता है। किसी एक जगह अगर लैचज रह जाएगी, सारा काम बिगड़ जाएगा। मार्केटिंग एंड सेल्स।
सेलिंग, प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, मार्केट रिसर्च। हर एक मुद्दे पर जो है प्रोडक्ट की जो है गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। अब कहिएगा कि भाई बेचने से गुणवत्ता को क्या लेना देना है भाई। अरे भाई गुणवत्ता कौन काम की जब बेच ही नहीं पाए जो है। प्रमोशंस, किस तरह से उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है बाजार में, यह प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। प्रोडक्ट में गुणवत्ता है लेकिन कोई जानता ही नहीं है, इसका मतलब कि कोई गुणवत्ता नहीं है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बाजार में भुनाना एक बहुत बड़ा काम है। वो ऐसे नहीं होता है, उसके लिए एक मार्केटिंग फोर्स होता है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से जो है उसका इस्तेमाल किया जाना पड़ता है, तब जा करके जो है सो कोई चीज़ें आपकी जो है गुणवत्तापूर्ण चीज़ें को लोग गुणवत्तापूर्ण मानते हैं, समझते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि नहीं ये सही में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है। तो ये मार्केटिंग फोर्स है, ये जो है आपकी गुणवत्ता को बताने वाला है, इसलिए गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। एडवर्टाइजिंग, किसी चीज का एडवर्टाइजेशन अगर नहीं हो कौन जानेगा। ये कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अरे भाई किसी ने नहीं देखा तो उस तरह के नाच का कोई मतलब नहीं है। बाजार में तो वही माल बिकते हैं जिसका एडवर्टीजमेंट सही ढंग से होता है। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। वैल्यू एडिशन में ये सहायक है एडवर्टीजमेंट। फिर प्राइसिंग है, क्या उसका आप दाम रखते हैं, ऐसा तो नहीं ना दाम रख दिए हैं जो कि जो है इम्प्रैक्टिकल है। किसी चीज का प्राइसिंग जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्या कस्टमर अफोर्ड कर सकता है। अब ऐसा चीज नहीं रख दीजिए कि जो है उसके अफोर्ड नहीं कर सकता है जो है सो कस्टमर, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी लेकिन बाजार में बिकेंगी ही नहीं। तो ये प्राइसिंग भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। सर्विस एक्टिविटीज, कस्टमर सपोर्ट, वारंटी, मेंटेनेंस एट द कस्टमर साइट, ये आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली है, वैल्यू एडिशन में सहायक है कि आप कस्टमर सपोर्ट क्या देते हैं, क्या वारंटी देते हैं, मेंटेनेंस के लिए आपका क्या तौर तरीका है, क्या टीम है। ऐसा तो नहीं कि मेंटेनेंस के नाम पर ग्राहक से जो है सो आप पैसा ठगते रहते हैं। तो ग्राहक तो बड़ी धीरे धीरे किसी चीज़ को समझ लेता है, आपका बाजार टूटना शुरू हो जाएगा, बदनामी होनी शुरू हो जाएगी। तो कस्टमर के साइट पर जो है मेंटेनेंस जो है वो भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली है। आफ्टर सेल सर्विसेज में अगर आप उसको मेंटेनेंस जो है कुछ दिन के लिए फ्री देते हैं कि इस दरमियान अगर प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसका आप ऑन द साइट जो है फ्री ऑफ सर्विसेज देते हैं, आपका टेक्नीशियन आकर को उसके घर में उसको सुधार देता है, कोई कंपोनेंट्स खराब हो गया है उसको चेंज कर देता है या पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही बदल देता है,
तो इससे जो है एक सेटिस्फैक्शंस जो है ना कस्टमर के अंदर जो है सो वो उत्पन्न होगा, और यही सेटिस्फैक्शंस तो जो है मार्केटिंग है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वैल्यू चेन में जो है प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाने वाली हैं। सो इट में बी So it may be best for a firm to outsource or from a strategic alliance with outside suppliers to perform those value activities in which it does not have a unique advantage. इस तरह से ये देखा जा सकता है कि कोई भी कंपनी जो है वो आउटसोर्स करके अपने जो है प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है, जिसमें वो स्वयं सक्षम किसी कारण से नहीं है। सो द वैल्यू चेन ऑफन एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए फर्म। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू चेन जो है वो किसी भी संगठन का जो अपना दायरा है, अपना प्रेमिसेस है, अपना जो सामर्थ्य है, उससे बाहर भी जाती है। बाहर के प्रोफेशनल फर्म से जो है वो सहायता जो है सो ली जाती है। वो पेशेवर है, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। और आज के समय में जो है तकरीबन हर कंपनियां ऐसी कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। सारे काम जो है कंपनियां खुद से नहीं करती हैं, आउटसोर्स करती हैं। अपने प्रेमिसेस से बाहर जो है पेशेवर को हायर करती हैं, सारा काम खुद से नहीं करती हैं। हाँ, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल का अलग डिपार्टमेंट होता है कि भाई जो आउटसोर्स कर रहे हैं उसकी सेवा गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, उसको देने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। लेकिन सारा काम खुद से कोई कंपनियां नहीं करती हैं, सब आउटसोर्स करती है। आज के ज़माने में जो है ऐसा करना जो है वो लाजिमी है। यह संभव नहीं है कि सारा काम आप खुद से कर लें। तो इस तरह से जो है ये आपका जो है एक्सटेंडिंग द वैल्यू चेन बियॉन्ड द फॉर्म्स, ये टॉपिक आपका जो है समाप्त हुआ।